Assalamu alaikum. This is lecture number 16 for the course LSM 733, Production Operations Management. And I'm Usman bin Saif. This lecture is about revision. I'm going to revise whatever we have learned in the previous lectures. अभी तक हमने 15 लेक्चर्स हो गए, 15 सेशंस हो गए, और 15 में जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज अबाउट द कोर्स कंटेंट्स एंड वी स्टार्टेड द कोर्स फ्रॉम द सेकंड सेशन. सो फ्रॉम सेकंड सेशन टू द 15th सेशन व्हाटएवर वी हैव लर्नड आई एम गोइंग टू रिवाइज इट बिकॉज after this 16th session you are going to have your midterm exam. So I want to prepare you for the midterm exam. Though we have discussed all these things in detail when we went through these lectures, but I'm going to walk you through lecture or session 2 to session 15 very quickly. I'm going to tell you the important concepts, the important topics. I'll give you an overall idea that what concepts are essential for production operations management. Rest of the things that I'm going to skip in this, because this is one session and we are going to cover approximately 7-8 chapters. So it's not possible to bring in every example, it's not possible to bring in all the numericals, it's not possible to bring in calculations or all the concepts. I'm just going to overview what we have learned in the last sessions. I believe this will help you when you are going to prepare for your midterm exam. And let's just start the lecture then. The first chapter that we started with was Production Operations Management, the overall strategy or the theme of Production Operations Management. Initially we introduced what is Production Operations Management. Production is the creation of goods and services, and operations management is the set of activities that create value in the form of goods and services by transforming inputs into outputs. दो चीजें, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, तीन वर्ड्स हैं. दो चीजें कौन सी, एक प्रोडक्शन है और एक ऑपरेशन है. ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एक प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना. प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना. लेट्स सपोज हम कहते हैं, एक पेन की हम एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव माय फैक्ट्री, या आई हैव प्रोड्यूस्ड वन पेन. But when I'll say I have produced one pen and my process was efficient, my operations were efficient, I used the raw material as inputs, and I have a finished good which is the fountain pen or the ball pen. That is the final product. Or in between जो प्रोडक्ट तो देखें, प्रोडक्ट तो हम प्रोड्यूस, जब भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें तो प्रोडक्ट तो हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रॉ मटेरियल वेस्ट करके भी कुछ ना कुछ बना ही लेंगे. और अपने डिलेड ऑपरेशंस, हमने एक पेन जो एक दिन में बनता है वो पेन आप 50 दिनों में भी बनाए तो भी आप प्रोड्यूस कर लेंगे. बट ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला पार्ट वहां पे मिसिंग होगा, बिकॉज आपके ऑपरेशंस प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो ही आप एक पेन जो एक दिन में बनता है वो 50 दिन में बना रहे हैं, या जिसके ऊपर कॉस्ट 100 रुपीज आती है आप 500 में 5000 में उसको बना रहे हैं. सो दो चीजें, एक प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज अबाउट प्रोडक्शन, कोई चीज प्रोड्यूस करना. अब सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग की भी बात नहीं कर रहे, हम इसमें सर्विसेज सेक्टर, हमने हर चैप्टर में उसको दोनों व्यू से देखा है. हर चैप्टर को हमने, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े उनको हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पढ़ा और सर्विसेज में भी पढ़ा. दोनों में देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, सर्विसेज में क्या होगा. नाउ प्रोडक्शन, कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करना और उसके बाद उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना ऑप्टिमली या एफिशिएंटली, दिस इज प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. सेम गोज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेम गोज फॉर द सर्विस सेक्टर. So this concept is extremely important.
What are the critical decisions in production operations management? The design of goods and services. कौन सी goods और services design करनी चाहिए? What goods or services should we offer? How should we design these products and services? कैसे design करें? Then managing their quality. अब हम operations management और production की इकट्ठी बात करें और हम कह रहे हैं कि उसके अंदर critical decisions क्या हैं, कौन सी चीज़ें essentially ज़रूरी होनी चाहिए. फिर मैनेजिंग क्वालिटी. हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी? क्वालिटी हम कहते हैं किसे रिस्पॉन्सिबल कौन है क्वालिटी के लिए, कौन क्वालिटी को चेक करेगा, क्वालिटी को मेंटेन करेगा. प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन. व्हाट प्रोसेस एंड व्हाट कैपेसिटी विल दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर? व्हाट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर दीज प्रोसेसेस. फिर हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है उसको भी हमने मैनेज करना है कि हम उस कैपेसिटी में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हमें ऑर्डर ज़्यादा यूनिट्स का मिला है फिर हम क्या करेंगे, कम का मिला है फिर हम आइडल कैपेसिटी को कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज आइडल कैपेसिटी की भी देयर इज अ कॉस्ट. देन लोकेशन स्ट्रैटेजी. वेयर शुड वी पुट द फैसिलिटी? हम अपने फैक्ट्री या हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करें वो कहाँ पे हमने प्रोवाइड करनी है. ऑन व्हाट क्राइटेरिया शुड वी बेस द लोकेशन डिसीजन? हम किन क्राइटेरिया के ऊपर अपनी लोकेशन को बेस करते हैं. Then layout strategy. How should we arrange the facility? How should we arrange the facility? हम facility को कैसे arrange करते हैं? How large must the facility be to meet our plan? और हमारी जो planning है या हमारी जो capacity है उसके लिए हमारी एक तो layout strategy कि हम arrange कैसे. layout में हमने layout के chapter में हमने पढ़ा था कि factory का layout, किसी रेस्टोरेंट का लेआउट, कुर्सियां कहाँ रखनी है, टेबल्स कहाँ लगानी है, सोफास कहाँ लगेंगे, ये सारा लेआउट. अब लेआउट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपने फैसिलिटीज को अरेंज कैसे करना है और फिर कितनी आपकी किस कैपेसिटी की फैसिलिटीज चाहिए आपके प्लान्स को मीट करने के लिए. देन द सिक्स्थ डिसीजन इज ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिजाइन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट in both the manufacturing and the services sector. How do we provide a reasonable work environment? How much we can expect our employees to produce? Employees की efficiency और फिर on the other side उनको environment provide करना. Supply chain management. Should we make or buy this component? Who should be our suppliers and how we can integrate them into our strategy? Production operations management. आपके operations management उसी वक्त efficient हो सकते हैं जब आप अपनी supply chain decisions को बहुत critically आप evaluate करें. Supply chain is extremely important for production operations management. Inventory, material requirements planning and just in time. How much inventory of each item should we have? When do we reorder? Reorder points. Intermediate short-term scheduling. Are we better off keeping people on the payroll during slowdowns? Which jobs do we perform next? Next हम order क्या हमने जो है produce करना है. जब हमारे पास order नहीं तो उस वक्त human resource का क्या करें? Short term, long term planning करते हैं, schedules बनाते हैं. Maintenance. How do we build reliability into our processes? हम अपने processes में reliability कैसे लाएंगे? Maintain कैसे करेंगे? Who is responsible for maintenance? So these are all 10 decisions, critical decisions, which are used when we talk about production operations management. Now the characteristics of goods. Characteristics of good कैसे कहते हैं? Tangible product को, consistent product को, production using separate from consumption, can be inventoried, low customer interaction. अब ये सारे characteristics हैं quality good के, जो कि एक tangible product है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, consistent है कि हम repeatedly same quality को produce कर सकते हैं. फिर हमारी production और consumption दोनों अलग अलग चीज़ें. एक आपका जो है concern एक factory produce करती है और उसके बाद customers buy करते हैं, वो consume करते हैं. कैन वी इन्वेंट्रीज हम उसकी इन्वेंट्री हम बिल्डअप कर सकते हैं. और लो कस्टमर इंटरेक्शन कि जब आप प्रोडक्ट को या गुड को डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कस्टमर फीडबैक ओनली यूज़ करते हैं, आप अपना मार्केट सर्वे यूज़ करते हैं, लेकिन कस्टमर्स एक्चुअली उस पर काम नहीं कर रहे होते.
नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, इनटेंजिबल प्रोडक्ट होती है सर्विस। सर्विस आपको हाथ उसको इंटेंजिबल उसे कहते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, जैसे ही प्रोड्यूस होती है साथ ही कंज्यूम हो रही होती है। ऑफन यूनिक होती हैं, कुछ सर्विसेज वेरी यूनिक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज होती हैं। हाई कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे जैसे प्रोड्यूस हो रही है साथ साथ कंज्यूम भी हो रही है। इनकन्सिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन, और हर सर्विस दूसरी सर्विस से मुख्तलिफ हो सकती है, इनकन्सिस्टेंट हो सकती है। ऑफन नॉलेज बेस्ड होती है, फ्रीक्वेंटली डिस्पर्स्ड होती है। So these were the things that we discussed. This is actually the overall theme of our first chapter. I have not brought all the topics. This is just the basic concept of the first chapter. You need to cover the other topics all by yourself. We have already discussed them in detail. So moving on to the next topic, next chapter, which was about the global environment and the operation strategy, and we discussed mainly the reasons to globalize. हम क्यों globalize करना चाहते हैं? Because in order to improve the supply chain, हम supply chain को improve करना चाहते हैं। Reduce cost को reduce करना चाहते हैं। Cost में labor है, taxes हैं, tariffs हैं। Improve operations, understand markets, improve products, and attract and retain global talent. अब हम ग्लोबलाइज क्यों करते हैं? मेरे पास एक फैक्ट्री है कॉटन की, कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे लिए ल्यूक्रेटिव मार्केट कौन सी है? मैं बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, आई वॉन्ट टू गो ग्लोबल। पाकिस्तानी कंपनी हूँ मैं, लेकिन मैं बांग्लादेश में भी अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है। वहाँ पे जो है आपका टेक्सटाइल सेक्टर पर टैक्सेस कम है, टैरिफ्स कम है। फिर अगर मैं इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस की बात करूँ तो मैं इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं इम्प्रूव इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय कर लूँ। मैनेजर्स मैं पूरी दुनिया से ढूंढ सकता हूँ। दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, आपको पता है कि कौन कौन सा प्रोफेशनल कौन से कंट्री में कहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। लिंक्डइन वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अगर कोई मैनेजर चाहिए, स्पेसिफिक कोई मैनेजर चाहिए, तो मैं उस मैनेजर से, और वो इस वक्त मैनेजर अगर जॉब कर रहा है जर्मनी में, तो अगर मैं उससे अच्छी सैलरी दूंगा तो ही लव टू कम टू पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश। तो ऑपरेशंस में इंप्रूव कर सकता हूँ। मार्केट्स, नई मार्केट में अगर मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा तो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड न्यू मार्केट्स। प्रोडक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। और फिर अट्रैक्ट एंड रिटेन ग्लोबल टैलेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं एक मैनेजर मुझे चाहिए, तो मैनेजर, अब मेरे पास पहले तो अगर मुझे मैनेजर हायर करना है तो मेरे पास मार्केट सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी क्या, मेरे पास अगर मैं लाहौर में फैक्ट्री, तो मैं लाहौर में देख रहा हूँ कि लाहौर में से कोई मुझे अच्छा टेक्सटाइल मैनेजर मिल जाए। लेकिन अब क्या है, पूरा पाकिस्तान से आप पाकिस्तान में आप ढूंढ सकते हैं, आप पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ढूंढ सकते हैं। हम जापान से एक मैनेजर हायर करके पाकिस्तान बुला सकते हैं। Developing missions and strategies. Mission statement tell an organization where it is going. The strategy tells the organization how to get there. Strategies for competitive advantage. Differentiation, better or at least different. Cost leadership, cheaper. Response, more responsive. अब competitive advantage के लिए हमारे पास क्या strategies हैं? पहली स्ट्रैटेजी तो यह है कि डिफरेंशिएशन, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर होना चाहिए, एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए आपके बाकी कंपेटिटर्स से। कॉस्ट लीडरशिप, कि वो आपकी चीपर होना चाहिए आपके बाकी कंपेटिटर्स से। और मोर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द सोसाइटी होना चाहिए। देन केम अनदर चैप्टर व्हिच वाज अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Project management is a methodological approach to planning and guiding project processes from start to finish. Sequential भी इसे कहते हैं कि सीक्वेंस में आप पहला पहली एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप प्लान करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को आप गाइड करते हैं, उसके प्रोसेसेस को आप उसको शुरू से लेके एंड तक, प्रोजेक्ट क्लोजिंग तक.
According to the Project Management Institute, this processes are guided through 5 stages. सबसे पहले initiation, planning, executing, controlling and closing. तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स अ साइंस जिसमें कि हम कहते हैं सिक्वेंशली हम हर स्टेज को हर एक्टिविटी को स्टेज वाइज हम उसको मूव करते हैं और एंड के ऊपर हमारा जो है वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है. Everything can be a project. Let's suppose I say I want to buy a new car. This is a project. How? इसकी हम 5 stages हैं. प्रोजेक्ट की 5 stages होती हैं. एक इनिशिएशन होती है, एक प्लानिंग होती है, एक एग्जीक्यूटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है. अब क्या मैंने सोचा कि यार आई वांट टू बाय अ न्यू कार, तो मैं ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करता हूँ. प्रोजेक्ट कैसे मैं इनिशिएट करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, देखता हूँ कि मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ नई गाड़ी का और मेरे पास इतने पैसे हैं, ये रेंज है मेरी. मैं उसके हिसाब से प्लानिंग करता हूँ कि गाड़ी मैंने ख़रीदनी कैसे, मार्केट्स कौन कौन सी हैं, उन मार्केट्स को मैंने एक्सप्लोर कैसे करना है. आज शाम को मैं फलाने शोरूम पे गाड़ी देखा हूँ या कल शाम को जाऊँगा, ये सारी मैं प्लानिंग कर लेता हूँ. मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इस्लामाबाद की मार्केट, पिंडी की मार्केट मैंने चेक कर लेनी कि कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, किस प्राइसेस में अवेलेबल हैं और उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, क्या उन गाड़ियों के कंडीशंस क्या हैं. देन मैंने पहले प्लान कर लिया, उसके बाद फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ. मैं जाता हूँ जाके शोरूम्स के ऊपर गाड़ियाँ देखता हूँ, प्राइस नेगोशिएशन करता हूँ सारी, और उसके बाद फिर जब मैं एक अपनी गाड़ी ढूंढ लेता हूँ, जो गाड़ी मुझे पसंद आती है वो मैं उसे नेगोशिएट कर लेता हूँ. फिर मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैंने कंट्रोलिंग में क्या करता हूँ कि जो मैंने प्लान किया था मैंने क्या एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से की. मैंने प्लान किया था कि मैं इस्लामाबाद के सारे शोरूम्स देखूंगा, रावलपिंडी के भी 3 शोरूम्स देखूंगा. तो क्या मैंने एग्जीक्यूशन में रावलपिंडी के भी तीनों शोरूम्स देख ली? हो सकता है उसके पास कोई इससे भी बेहतर गाड़ी हो, तो फिर मैं कंट्रोल करूंगा अपने प्लान. उसके बाद मुझे गाड़ी पसंद आ जाएगी तो मैं गाड़ी परचेज कर लूंगा. परचेज करके मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दूंगा. लास्ट स्टेज इज क्लोजिंग. मैं क्लोज भी कर दूंगा कि और कहूंगा कि जी ये मैंने गाड़ी परचेज कर ली है, दैट इज इट. सो इसी तरह मैंने लाहौर जाना. लाहौर जाना भी एक प्रोजेक्ट है. लाहौर जाना कैसे प्रोजेक्ट है? मैं सबसे पहले इनिशिएट करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करता हूँ कि जी मुझे लाहौर जाना है. ठीक है, प्लान करता हूँ कैसे जाना है. मुझे डेवू पे जाना है, अपनी कार पे जाना है. मैं कहता हूँ कि जी अपनी कार पे जाना है. ठीक है, कार पे जाने से पहले मैं उस कार को मैं प्लान करूँगा कि कितना फ्यूल उस पर स्पेंड होगा, कितने उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी. गाड़ी का मुझे ऑयल चेंज करना है, ब्रेक्स, उसकी गाड़ी सर्विस करानी है, और मैं प्लान करें कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ ठहरना है और कहाँ पे लंच करना है, कहाँ पे डिनर करना है, और मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो काम कैसे करना है, काम कंप्लीट करके कब मैं जाऊँगा, कब मैं वापस आऊँगा, और मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी. उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं. आप एक्चुअली लाहौर के लिए निकलते हैं. लाहौर पहुंचते हैं, वहाँ पे आप सारा जो काम करना है वो करते हैं, रात रहते हैं, खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं और फिर वापस आप आते हैं. और फिर आप कंट्रोलिंग में देखते हैं कि आपने जो काम किया आपने एक्चुअली अपने प्लान के मुताबिक किया. और उसके बाद जब आप वापस पहुँच जाते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट क्लोज कर देते हैं कि जी मेरा प्रोजेक्ट जो था वो लाहौर जाने का, इट हैज़ बिन सक्सेसफुल और आई एम क्लोजिंग इट. This is what project management is. आपने मटेरियल प्रोक्योर करना है. मटेरियल भी एक प्रोजेक्ट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल. नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? प्लानिंग है. प्लानिंग में आप अपना ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, रिसोर्सेज क्या होंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. वे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें आप एक्टिविटीज लिस्ट करते हैं कि आपने क्या क्या काम करने. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर एक्टिविटीज. देन उसके बाद स्केजुलिंग. स्केजुलिंग में आप प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टार्ट एंड एंड टाइम, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कौन सी एक्टिविटी कब खत्म होगी, उसके बाद अगली एक्टिविटी कौन सी होगी. नेटवर्क डायग्राम्स बना लेते हैं आप, उसके पेरेटो चार्ट्स बना लेते हैं. फिर कंट्रोलिंग, मॉनिटर, कंपेयर, रिवाइज, एक्शन. तो ये आपकी सारी एक्टिविटीज़ हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, जर्नलाइज्ड हैं. फिर प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में आप देखते हैं आइडेंटिफाई, प्रेसिडेंस, रिलेशनशिप्स, sequencing activities, determining activity times and cost, estimating material and worker requirement, determining critical activities. प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा एक
कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी, कौन सी एक्टिविटी पहले ख़त्म होगी, कौन सी एक्टिविटी उसके बाद स्टार्ट होगी, कौन सी एक्टिविटी उसके बाद ख़त्म होगी, कौन सी एक्टिविटी पहली एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग में पहले रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, उसके बाद आप उसका स्केजुल बना लेते हैं कि पहली एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी इकट्ठी शुरू होगी और पहली ख़त्म होगी तो दूसरी होगी, दूसरी के बाद वो चौथी एक्टिविटी हो जाएगी। इस तरह से आप उसको प्लान कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि वर्कर कितने आपको चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए होगा, एक्टिविटी टाइम हर एक्टिविटी का क्या है, कॉस्ट कितनी आएगी और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। देन देर आर सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें गैंट चार्ट है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है, पर टेक्निक है। ये बेसिकली सारी की सारी ग्राफिकल टेक्निक्स हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि गैंट चार्ट के अंदर भी आप एक ग्राफ के ऊपर आप चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, पहली एक्टिविटी, उसके बाद कौन सी अगली एक्टिविटी, उसके बाद अगली, साथ साथ हम माइलस्टोन्स उसके ऊपर लिस्ट कर देते हैं, साथ साथ टाइम्स आ जाते हैं, कॉस्ट आ जाती है और उस कॉस्ट के हिसाब से आप अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट स्केड्यूल बना लेते हैं, आप अपनी लेबर रिक्वायरमेंट स्केड्यूल बना लेते हैं, आपके पास टोटल कॉस्ट का स्केड्यूल आ रहा होता है कि इस एक्टिविटी तक आप कितनी कॉस्ट इनकरोगे, इस एक्टिविटी तक इतनी कॉस्ट इनकरोगे, इस एक्टिविटी पे इतनी लेबर रिक्वायर्ड है, इस एक्टिविटी पे इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो गैंट चार्ट भी इसी तरह क्रिटिकल पाथ में लॉन्गेस्ट पाथ आप डिफाइन कर लेते हैं, वो आपका मैक्सिमम टाइम होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर, और फिर आप उसके हिसाब से इसी तरह पर्ट के अंदर भी आप इन टेक्निक्स के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं कि इज़ माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, जो मैंने जो प्लान किया था मैं उसी हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या आई एम बिहाइंड या आई एम अहेड। Then came the topic of the chapter of forecasting, which was an important one. What is forecasting? Process of predicting a future event. Underlying basis of all business decisions, production, inventory, personal facilities. Process of predicting a future event is called forecasting. Future event कौन सा होता है? हम इस वक्त प्रेजेंट में मौजूद हैं, जो वक्त गुजर गया दैट इज पास्ट, जो वक्त आने वाला दैट इज फ्यूचर। तो हम क्या फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं मैं कह सकता हूं कि कल मैं सुबह उठ के मैं एक नई गाड़ी खरीद लूंगा? आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसा करूंगा? दिस इज फोरकास्टिंग। आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि भाई उस्मान तुम सुबह उठोगे और एक नई गाड़ी खरीद लोगे। आप बिल्कुल फोरकास्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आप मेरे जो पिछला हिस्ट्री है, मेरा डाटा देखेंगे कि उस्मान रोज उठता है, सुबह एक नई गाड़ी खरीद लेता है। आप देखेंगे डिमांड का आप एनालिसिस करके देखेंगे कि आप ट्रेंड देखेंगे कि एवरी मंडे मॉर्निंग जो है आपके जो सेल ज़्यादा होती है, ट्यूसडे मॉर्निंग सेल कम होती है, तो आप उस हिसाब से फोरकास्ट कर सकते हैं कि जी आपकी मंडे, पिछले जितने मंडेज गुजरे हैं उन सब मंडेज को आपकी सेल 10,000 थी, तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि जी आपकी इस मंडे की भी सेल 10 और 11,000 में रेंज करेगी। दिस इज़ व्हाट अ फोरकास्ट इज, फोरकास्ट डिमांड। आप फोरकास्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पिछले पे बेस करके कि भाई हर मंडे को, हर वेडनेसडे को आप कहते हैं कि जी जो डिमांड है ड्रॉप कर जाती है, 500 यूनिट्स पे आ जाती है, तो आप कह सकते हैं कि इस वेडनेसडे की भी डिमांड जो है वो 450 to 500 यूनिट्स होगी। द रियलिटीज फोरकास्ट आर सेल्डम परफेक्ट. Most techniques assume an underlying stability in the system. Product family and aggregated forecast are more accurate than individual product forecast. अब आप ओवरऑल सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड को कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल को फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन दे आर सेल्डम परफेक्ट. आप सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस करके कह रहे होते हैं कि भाई उस्मान रोज सुबह उठता है एक नई गाड़ी ले लेता. अब हो सकता है इस मंडे को मेरे पास इतने पैसे ना हो गाड़ी खरीदने के, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो डिमांड तो मेरी फोरकास्ट तो गलत हो गई. लेकिन फोरकास्ट मेरी बेस थी पिछले मेरी रेपुटेशन पे. अब एवरी मंडे को मैं गाड़ी खरीद रहा था, लेट्स सपोज मैं कार्स का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एवरी मंडे को एक गाड़ी खरीद रहा हूँ,
लेकिन इस मंडे को मुझे क्योंकि पिछली पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो मैं अगली नहीं खरीद पा रहा, या इस मंडे को कार कोई मुझे अच्छी मिली नहीं. देयर कैन बी सेवरल रीजंस, बट फोरकास्ट तो ये है कि जी खरीदेंगे, क्योंकि एवरी मंडे को मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है खरीद रहे. तो इसलिए दे आर सेल्डम परफेक्ट. देयर इज अ चांस कि मैं खरीद लूँ, देयर इज अ चांस कि नहीं खरीदूँ. इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 फेजेस हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ रिक्वायर्स लॉन्गर फोरकास्ट दैन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. इंट्रोडक्शन और ग्रोथ के अंदर क्योंकि हमारी सेल्स डिमांड बढ़ रही होती है तो उस वक्त हमारी फोरकास्ट भी हम ज़्यादा अरसे की फोरकास्ट करते हैं, और मैच्योरिटी डिक्लाइन क्योंकि शॉर्टर पीरियड्स होते हैं. एज प्रोडक्ट पासिस थ्रू द लाइफ साइकिल, फोरकास्ट आर यूजफुल इन प्रोजेक्टिंग. अब जैसे जैसे प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल के अंदर आगे आगे चलता जाता है तो हमें फोरकास्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे लिए यूजफुल होती है इन प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल, फैक्ट्री कैपेसिटी. स्टाफिंग लेवल्स कि अब मंडे की मेरी डिमांड 1000 यूनिट्स है, मैं फोरकास्ट करता हूँ 1000 यूनिट से, क्योंकि यूजुअली जितने पिछले मंडेज हैं उन सबको इसी तरह होता है कि मंडे को डिमांड बढ़ जाती है, तकरीबन 1000 हो जाती है. अब मंडे को क्योंकि 1000 है तो मैंने संडे को जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए मुझे ज़्यादा स्टाफ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ स्टाफ उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ. संडे को मैं ज़्यादा लोगों को हायर कर लेता हूँ. फिर वेडनेसडे को मैं कहता हूँ कि मेरी डिमांड ड्रॉप हो जाएगी तो वेडनेसडे को मैं उतने लोग ले ऑफ कर देता हूँ. इसी तरह इन्वेंट्री लेवल जो है मेरा मंडे को ज़्यादा होता है, वेडनेसडे को कम होता है. फैक्ट्री कैपेसिटी भी इसी हम देख सकते हैं. फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने संडे को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है मंडे को सेल करने के लिए, तो मैं संडे को जो है क्या कहते हैं मुझे मटेरियल ज़्यादा जो है मैं फोरकास्ट करता हूँ कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल की. Then there are qualitative and quantitative methods in order to actually develop, simulate, forecast and evaluate them. One of the method is jury of executive opinion, pool opinions of high level experts sometimes augmented by statistical model. Jury of executive opinion एक qualitative method है जो कि आपके कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, बहुत सीनियर मैनेजर्स होते हैं जिनका 15 साल 20 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको वैसे ही उनका एक ओपिनियन होता है, एग्जेक्टिव एक ओपिनियन होता है कि यार मंथ के पहले 5 डेज 6 डेज में वो कहते हैं कि जी 5-6 दिनों में डिमांड ज़्यादा होती है, उसके बाद डिमांड आहिस्ता से ड्रॉप करती है, फिर डिमांड इस दिन बढ़ जाएगी इस दिन कम हो जाएगी, क्योंकि उनका पास एक्सपीरियंस ये कहता है. तो आप उसके थ्रू भी एग्जेक्टिव ओपिनियन के थ्रू भी आप फोरकास्ट डेवलप कर लेते हैं. डेल्फी मेथड आप क्या करते हैं एंड एक्सपर्ट्स को बैठा लेते हैं और एक्सपर्ट्स को उन्हें कहते हैं कि जी आप अपने अपने ओपिनियन दें, और उन सारे ओपिनियंस पे जब कंसेंसस हो जाता है दैट इज डेल्फी मेथड. सेल्स फोर्स कंपोजिट एस्टिमेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन एज रिव्यूड फॉर रीजनेबलनेस देन एग्रीगेटेड. आप अपने क्या करते हैं सेल्स फोर्स जो आपके सेल्स मैन है उनसे आप फीडबैक लेते रहते हैं कि कितनी सेल हो रही है, किस एरिया में हो रही है, और वो आपको फोरकास्ट भी देंगे नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 2 डेज में, नेक्स्ट 5 डेज में, नेक्स्ट वीक की क्या फोरकास्ट है कि इस हफ्ते में सेल ज़्यादा होगी कम होगी. तो वो मार्केट लोकल माइक्रो लेवल पे मार्केट कंडीशंस को देख के बता रहे होते हैं कि जी क्योंकि मार्केट में लोगों ने इस दफ़े पिछले हफ्ते ज़्यादा इन्वेंट्री बाय कर ली थी तो नेक्स्ट वीक इन्वेंट्री कम बाय करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टॉक जो है अवेलेबल है. कंज्यूमर मार्केट सर्विस, आप मार्केट सर्वे कर लेते हैं, आपको डिमांड पता चल जाती है कंज्यूमर्स की. देन कम्स द क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, नेव अप्रोच, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन, लीनियर रिग्रेशन. अब ये नाइव, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और ट्रेंड प्रोजेक्शन ये सारी स्टैटिस्टिकल हैं. लीनियर रिग्रेशन भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें से पहली जो हैं 4 वो तो टाइम सीरीज मॉडल्स कहलाते हैं और लास्ट में उसे एसोसिएटिव मॉडल कहलाते हैं. तो आप क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव टाइम सीरीज डाटा क्या होता है? टाइम सीरीज डाटा ये होता है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज हमने कहा था डिमांड के मंडे को डिमांड ज़्यादा होती है, ट्यूसडे को डिमांड कम होती है, तो पिछले आपके पास 5 साल का डाटा है, डेली का डाटा है आपके पास, डेट वाइज डाटा है कि हर मंडे को डिमांड क्या थी, तो आप उससे कंपेयर कर लेते हैं, ट्रेंड बना लेते हैं कि जी मंडेज पिछले 5 साल से हर मंडे को आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, हर वेडनेसडे को डिमांड डिक्रीज कर रही है. दिस इज हाउ टाइम सीरीज मॉडल्स वर्क. देन कम्स अनदर
टॉपिक विच वाज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एन इंट्रोडक्शन, MSP का इंट्रोडक्शन था। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपने लैपटॉप्स के अंदर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 थी, अब विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं। साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसी तरह उसके अंदर एक और पैकेज है जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गुड, वेरी सिंपल टूल टू मॉनिटर, डेवलप, प्लान अ प्रोजेक्ट। इस पे आप पूरा प्रोजेक्ट, आप एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ आप इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं, उसके बाद से मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो MSP enables you to stay informed and control project work, schedules, finances, cost scheduling आप इस पे देख सकते हैं, and to keep project teams aligned, और teams workforce को आप इसके ऊपर, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप करते क्या हैं कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, एंड डेट, आप अपनी जितनी ह्यूमन रिसोर्स है उसको लिस्ट डाउन कर देते हैं, आपकी अदर मटेरियल रिसोर्सेज, उसके बाद आपके जितने एक्टिविटीज़ हैं, एक एक एक्टिविटी को आप डिफाइन कर देते हैं, तो वो आपको पूरा एक पैकेज बना कर दे देता है कि इस दिन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, फर्स्ट 5 डेज में इतनी कॉस्ट आएगी, उसके बाद इस डेट पे इतनी वर्क फोर्स, इतनी वर्क लेबर आपको रिक्वायर्ड होगी, इतनी वर्क फोर्स आपके पास अवेलेबल है, और उसकी रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद आपकी मटेरियल प्लानिंग, ये सारी की सारी आपको कंप्लीट, उसके और अकॉर्डिंग टू योर जो है MSP का जो आपको गैंट चार्ट बना के देता है, आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा इस दिन के ऊपर इतनी हमारी कॉस्ट, इतनी हमारी रिसोर्सेज यहाँ तक एम्प्लॉय हो गए, यहाँ पे प्रोजेक्ट इस स्टेज पे होना चाहिए। This is what a Microsoft project do. Then comes the chapter of product design. Product decision, the good or service the organization provides to the society. What is product decision? The goods or service the organization provides to the society. कि वो कौन goods decision क्या product वो society को provide करे, good या service क्या. Top organizations typically focus on core products. Customers buy satisfaction, not just a physical good or a particular service. This is an extremely important sentence. Customers buy satisfaction. मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा, AC खरीदा, देखने में बहुत खूबसूरत है और बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गया। अगर वो परफॉर्मेंस सही नहीं करे, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तो बाकी सारी चीज़ें, उसकी डिज़ाइन, उसको प्राइस, हर चीज़ वहाँ पे नलिफाई हो जाती है, हर चीज़ वहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। और अगर वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड। व्हेन आई विल बी सेटिस्फाइड आई विल से कि जी बेशक उसका डिज़ाइन अच्छा भी ना भी हो तो भी मुझे पसंद आएगा, डिज़ाइन भी अच्छा है जी, प्राइस भी मैंने महंगा ख़रीदा, फिर भी मैं कहूँगा जी कोई बात नहीं, पैसे ज़्यादा लगे लेकिन चीज़ तो परफॉर्मेंस देखें ना आप, आई एम सेटिस्फाइड। सो कस्टमर्स बाय सेटिस्फैक्शन, वो प्रोडक्ट नहीं बेसिकली खरीद रहे होते, सेटिस्फैक्शन खरीद रहे होते हैं। सेटिस्फैक्शन, ये AC खरीदा तो कूलिंग करने कमरा ठंडा होना चाहिए, AC खरीदे और कूलिंग ना करे, कमरा ठंडा ना हो, तो उसका मतलब नो, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। फंडामेंटल्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी विद implications throughout the operation functions. फंडामेंटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी की प्रोडक्ट डिसीजन जो है या प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी का एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब करती है कि क्या आप प्रोड्यूस करना है उसने। देन प्रोडक्ट बाय वैल्यू एनालिसिस, इसमें हमने देखा था लिस्ट प्रोडक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल डॉलर कंट्रीब्यूशन टू द फर्म, लिस्ट द टोटल एंड एनुअल डॉलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, हेल्प्स मैनेजमेंट evaluate alternate strategies. ये बेसिकली हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लेते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन या उनका प्रॉफिट मार्जिन हम सारा उसमें लिस्ट कर लेते हैं। फिर हम उनको देख के ये एनालिसिस करते हैं और हम उसमें एवेलुएट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, किस क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तो हम किस तरह से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दैट इज प्रोडक्ट बाय वैल्यू एनालिसिस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है। सबसे पहले तो आपके पास आइडिया होता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक नया पेन बनाना चाहता हूँ, बॉल पेन बनाना चाहता हूँ,
जो कि जिसकी लाइफ जो है वो 15 ईयर्स होगी, 15 साल तक वो ख़त्म नहीं होगा. दैट इज़ एन आइडिया. फिर मैं देखता हूँ कि मेरी एबिलिटी क्या मैं ऐसा पेन बना सकता हूँ. अब जब मैंने आइडिया सोचा तो उस वक्त मैंने उसकी इंक की कोई केमिकल कॉम्पोजिशन भी सोची थी कि भाई इस तरह की इंक हो तो इंक उसके अंदर हो तो 15 साल तक ये इंक काफ़ी चल सकती है, 15 साल तक इंक चल सकती है. तो अब मैं क्या करता हूँ कि वो जो है मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है मुझे कंपोजिशन पता है, लेकिन क्या मैं ये एक्चुअली कर सकता हूँ एबिलिटी. देन कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है. कस्टमर हो सकता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही 15 साल का लिखने वाला पेन ही ना हो. कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होगी जी सस्ता पेन हो, खूबसूरत हो, देखने में बहुत अच्छा लगे, लिखने में बहुत अच्छा हो, बेशक वो 2 महीने चले हम नया पेन ले लेंगे, 2 महीने बाद फेंक देंगे. फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए कि पेन की निब कैसी हो, उसकी जो है लिखता कैसा हो, प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, उसका कैप कैसे, इसकी बैरल, उसकी बॉटल, उसके इंक, डिज़ाइन रिव्यू, फिर उसका डिज़ाइन, फिर टेस्ट मार्केट, इंट्रोडक्शन, फिर एवेल्यूएशन. फिर उसके इंट्रोडक्शन में मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करता हूँ, पेन बना के मैं मार्केट में बेचने चाहता हूँ, उसको मैं एवेल्यूएट करता हूँ कि हाउ इज़ दिस प्रोडक्ट डूइंग इन द मार्केट. तो फंक्शनल से लेकर टेस्ट मार्केट तक इट्स द स्कोप ऑफ द डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टीम, और बाकी स्कोप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम क्या है, एबिलिटी से लेकर एवेल्यूएशन तक. ये काम जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम करती है. QFT हाउस ऑफ क्वालिटी, एक हमने हाउस ऑफ क्वालिटी पढ़ा था जिससे हमने देखा था कि हाउ प्रोडक्ट डिज़ाइन इज एवेल्यूएटेड. तो हमने देखा था हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स और व्हाट द कस्टमर वांट. कस्टमर क्या चाहता है और उसको हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, और कंपेटिटिव असेसमेंट क्या है, और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को compete करते हैं. देन इन सारे रिलेशनशिप्स का हम एक रिलेशनशिप मैट्रिक्स बना लेते हैं. दैट मैट्रिक्स एक्चुअली टेल्स अस कि हमें कितना टारगेट वैल्यू क्या हमें प्रोड्यूस कितना करना चाहिए, उसके बाद हम उसको एवेल्यूएट हमें कैसे करेंगे. सो दिस इज अ QFD हाउस ऑफ क्वालिटी which actually measures, evaluate the design. Then we also talked about computer aided designs, CAD, using computers to design products and prepare. This is one of the technique. आजकल सब जगहों पे जितनी मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह पे ये हो रहा है कि आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आप पहले ये जिस तरह कार का मॉडल है, पहले होता था कि हाथ से गाड़ी बनाते थे और उसके बाद अब ये कि कंप्यूटर पे आप डिज़ाइन करते हैं और उसको आप देख भी सकते हैं, डिज़ाइन को आप हर एंगल से उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप उसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं. देन कम्स सर्विस डिज़ाइन. अब आप सर्विस कैसे डिज़ाइन करते हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग की तो बात कर ली. सर्विस में कस्टमर पार्टिसिपेशन इन डिज़ाइन सच एज प्री अरेंज फ्यूनरल सर्विसेज और कॉस्मेटिक सर्जरी. सर्विस में तो आपने फिर अब कॉस्मेटिक सर्जरी है या फ्यूनरल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कस्टमर से सर्विस जो है अपनी वो कस्टमर से डिज़ाइन करानी है, वो क्या चाहते हैं, फ्यूनरल सर्विस कैसे प्रोवाइड कीजिए, कस्टमर डिज़ाइन करता है और आप डिलीवर करते हैं. इसी तरह कस्टमर पार्टिसिपेशन इन डिलीवरी सच एज स्ट्रेस टेस्ट फॉर कार्डियक एग्जाम, उसमें भी कस्टमर से डिज़ाइन होता है, फिर डिलीवर और फिर आप कस्टमर को फीडबैक देते हैं. देन कस्टमर पार्टिसिपेशन इन डिज़ाइन एंड डिलीवरी सच एज काउंसलिंग, कॉलेज एजुकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब में क्या है कस्टमर. अब पहली सिचुएशन थी जिसमें कस्टमर ने आपकी सर्विस डिज़ाइन की, दूसरी सिचुएशन थी जिसके अंदर आपने सर्विस खुद डिज़ाइन की और कस्टमर को आपने डिलीवरी पार्ट के अंदर इंक्लूड किया. तीसरी सिचुएशन क्या है जिसमें आप कस्टमर को डिज़ाइन स्टेज पे भी रखते हैं और डिलीवरी स्टेज पे भी रखते हैं. अब जिसमें हमने एग्जांपल देखी कि काउंसलिंग या कॉलेज एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन में आप डिज़ाइनिंग में कैसे रखते हैं कि आप उनसे उनकी आप कस्टमर से डिज़ाइन करते हैं, आपने क्या करना है, MBA करना है, MBA क्यों करना चाहते हैं. देन उसके बाद आप MBA उनको कराते हैं, जब MBA आप उसको करा रहे हैं तो आप डिलीवरी पार्ट में भी उसको कस्टमर को शामिल कर रहे हैं, तो दोनों साइडों पे वो आ जाता, कस्टमर का इंटरेक्शन आ जाता. देन कम्स द चैप्टर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. 2 ways quality improves profitability.
सेल्स गेन्स वाया इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स, क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करती है, सेल्स गेन्स, आपकी सेल बढ़ जाती है, सेल क्यों बढ़ जाती है, आपका इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, इम्प्रूव्ड रेपुटेशन है, और कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लोअर रीवर्क स्क्रैप कॉस्ट है, लोअर वारंटी कॉस्ट है, तो इनकी सेल्स गेन्स और रिड्यूस्ड कॉस्ट से आपका प्रॉफिट जो है वो मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी, इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है कि क्वालिटी की वजह से क्या हो सकता है। सबसे पहले हम कहते हैं कंपनी रेपुटेशन, अगर क्वालिटी खराब होगी तो कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। परसेप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, तो अब एक प्रोडक्ट की वजह से अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई तो आप कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे तो कस्टमर ये कहेगा नहीं यार ये तो इस कंपनी की तो चीज़ लेनी नहीं ना। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, सप्लायर रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। देन प्रोडक्ट लायबिलिटी, कि प्रोडक्ट लायबल है, रिलायबल है, प्रोडक्ट कितना अरसा चलता है। रिड्यूस रिस्क, आप उसमें क्या करते हैं, रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करते हैं। देन ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कम्पीट, सिंस हमने कहा कि द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल, अब सिर्फ कंपटीशन विद इन द कंट्री या विद इन द सिटी नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड कोई भी कंपनी किसी भी मुल्क में जाके कोई भी प्रोडक्ट बेच सकती है, तो आपके कंपेटिटर सारी दुनिया में बैठे हैं जिनसे आपने कम्पीट करना है, उसके लिए भी क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो कम्पीट कर सकेंगे। की डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कंफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स, परसीव्ड क्वालिटी एंड वैल्यू। सबसे पहले प्रोडक्ट परफॉर्म ठीक करे, उसके फीचर्स रिलायबल हो, स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करे, स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड्स उसके प्रोडक्ट के हैं उसको ऊपर वो पूरा उतरे, ड्यूरेबल हो, सर्विसेबिलिटी का फीचर हो, इस तरह देखने में खूबसूरत हो, परसीव्ड क्वालिटी उसकी अच्छी हो और वैल्यू प्रोवाइड करे, तो फिर दीज आर द डायमेंशंस जिसकी वजह से यू से कि दिस प्रोडक्ट इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। देन कम्स कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, prevention cost, reducing the potential for defects, appraisal cost, evaluating products, parts and services, internal failure, producing defective parts or service before delivery, external cost, defects discovered after delivery। अब हम बार बार कह रहे हैं कि जी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अब मेजर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अब क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए भी तो कॉस्ट इनकर होगी। क्या कॉस्ट होंगी, प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है कि आप अपना जो है ऑपरेशंस, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग, उसको आप थॉरली उसको चेक करेंगे कि आपकी जो मशीन्स हैं वो डिफेक्टिव पार्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे। जितने ज़्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स होंगे उतनी आपकी जो है आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। तो लेकिन उसको प्रिवेंशन के लिए आप जो उसके ऊपर क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं उसकी भी एक प्रिवेंशन कॉस्ट भी है। फिर अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को चेक, सर्विसेज को चेक करने के लिए आपने लो क्वालिटी कंट्रोल पीपल हायर किए हुए, उनकी भी एक कॉस्ट है। इंटरनल फेलियर, प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पार्ट्स, अब आपने क्या किया, डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस कर दिए, अब डिफेक्टिव पार्ट्स का आपने क्वालिटी चेक किया तो वो डिफेक्टिव थे, अब उनको आप या तो ठीक करेंगे या फेंक देंगे, स्क्रैप करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, वो भी एक आपके ऊपर एक लायबिलिटी, क्योंकि आप डिफेक्टिव पार्ट्स तो बेच नहीं सकते। और आपने एक दफ़ा अगर पार्ट्स बेच दिए, उसके बाद ये गाड़ी आपने सेल कर दी, उसके बाद उसमें कोई डिफेक्ट निकल आया तो फिर आपको कॉल बैक करनी पड़ेगी, वो एक आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट है आफ्टर द डिलीवरी जो डिफेक्ट डिस्कवर हो गया। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड टू क्वालिटी। Total quality management encompasses entire organization from supplier to customer। आप सप्लायर से लेके आपके जो सप्लायर उससे कस्टमर तक हर एंड के ऊपर, हर नोड के ऊपर आप अपनी क्वालिटी को इंश्योर करें तो दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। Stresses a commitment by management to have a continuing company-wide drive towards excellence in all aspects of products and services that are important to the customer। Now टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, अब मैन्युफैक्चरिंग में तो आपने कहा सप्लायर से लेके आप कस्टमर तक, तो सर्विसेज में सर्विस क्वालिटी इज मोर डिफिकल्ट टू मेजर दैन द क्वालिटी ऑफ गुड्स।
Service quality perceptions depend on intangible differences between products, intangible expectations customer may have of those products. अब क्या है, सर्विस इज एन इंटेंजिबल गुड. तो अगर हम सर्विसेज सेक्टर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? क्वालिटी को मेजर इस तरह से करते हैं कि एक तो डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स और कस्टमर की परसेप्शन कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को अच्छा समझता है कि इसको समझता है, किसको प्रेफर करेगा, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उस प्रोडक्ट के साथ. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोसेस डिजाइन. हम ये सारे जो चैप्टर्स हैं आई एम क्विकली टेकिंग यू थ्रू दीज चैप्टर्स. सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो थीम है ऑफ द चैप्टर वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल फॉर द एग्जाम, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू of the chapter, the main theme of the chapter, the main concept that you need to understand when you will go through the chapter. The next chapter is process design. Process strategies क्या होती हैं? How to produce a product or provide a service. Produce a product or provide a service that meets or exceeds customer requirements. Meet cost and managerial goods. अब process की strategy, हमारी कोई भी process है, प्रोसेस की हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है कि प्रोसेस एफिशिएंट हो, ऑप्टिमम प्रोसेस हो. अगर प्रोसेस एफिशिएंट होगा, ऑप्टिमम होगा तो क्या हो रहा होगा, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे होंगे और उससे एक्सीड कर रहे होंगे, उससे भी ज़्यादा आप अच्छी जो है उसके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उससे भी अच्छा अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें. और अपनी आप कॉस्ट को जो है ना उसको आप रिड्यूस कर रहे होंगे, मैनेजेरियल गोल्स को आप या जो है कॉस्ट एंड मैनेजेरियल गोल्स को आप अचीव कर रहे होंगे. हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी. आपके ना प्रोडक्शन और एफिशिएंसी के लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट करती है आपको प्रोसेस स्ट्रेटजीज. और कॉस्ट एंड क्वालिटी के ऊपर. प्रोसेस फ्लो डायग्राम. इट स्टार्ट्स विद कस्टमर. कस्टमर आया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया. किसको? आपके कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को. उसको ऑर्डर दिया. अब उसको जब जैसे ही ऑर्डर मिला उसने वो ऑर्डर पास ऑन कर दिया टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट, जिसने कि अब ये क्या है बेसिक हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. एक ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्बम प्रिंटिंग. एल्बम प्रिंट करा रहे हैं जो कि उसमें प्रिंटिंग प्रेस में हम एल्बम उसकी पेपर की एल्बम हम प्रिंट करा रहे हैं. तो कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो उसने क्या किया कि उसने प्री प्रेस डिपार्टमेंट को बता दिया कि जी 5 एल्बम्स का ऑर्डर आ गए. अब वो ऑर्डर उसके पास भी चला गया, परचेजिंग के पास भी चला गया. उन्होंने उस एल्बम की जो बाइंडिंग थी, उसके जो पेपर था वो परचेज करके वेंडर से परचेज किया, रिसीव किया. और जब रिसीव किया तो उसके एक कॉपी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड के लिए चली गई. वहाँ से वो वेयर हाउस में चला गया, रिसीव करके वेयर हाउस में गया. वेयर हाउस से अब प्री प्रेस डिपार्टमेंट और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के पास वो उसकी बाइंडिंग और पेपर चला गया. दोनों ने प्रोसेस किया. फिर उसने कोलेटिंग डिपार्टमेंट, फिर ग्लू हुआ, बाइंडिंग, स्टेपलिंग, लेबलिंग हुई. उसके बाद उसको रैप किया, रैपिंग करके उसकी शिपमेंट नोटिस बनाया उन्होंने. उसके बाद नोटिस बना के वो कस्टमर को उन्होंने पहुंचा दिया, डिलीवर कर दिया. शिपिंग जब जैसे ही शिपमेंट के लिए गया, साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो रिले ऑन कर दी टू द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. और जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तो उस वक्त भी कस्टमर को जो है एक उसका बिल या उसको हमने इनवॉइस दे दी थी. और उसके बाद जैसे ही वो उसके बाद शिपमेंट होती तो फिर कस्टमर को बिल भी साथ प्रेजेंट कर देते. दिस इज हाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर बुक. प्रोसेस फ्लो डायग्राम. अब अगर हम एक और प्रोसेस फ्लो डायग्राम एक और मैन्युफैक्चरिंग की देखते हैं, मोटर बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सबसे पहले तो उसका फ्रेम बनाएंगे. फ्रेम बनता है. फ्रेम के बाद उसके बाद फ्रेम बिल्डिंग वर्क सेल्स हैं. फ्रेम के बाद मशीन बनती है. उसके बाद पेंट होता है. पेंट के बाद असेंबली लाइन में वो फ्रेम चला जाता है. फिर इंजन और उसकी ट्रांसमिशन अलग से परचेज होकर आती है. ऑयल टैंक
पेट्रोल जो फ्यूल टैंक है उसका एक अलग वर्क सेल है जहाँ पे वो बन रहा है, शॉक्स, फोक्स, हैंडल बार्स, फेंडर, एयर क्लीनर, फ्लूइड्स, मफलर, फ्यूल टैंक, व्हील वर्क, ये सारे के सारे असेंबली लाइन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो फ्रेम बन के आ गया, फ्रेम बना, फ्रेम के बाद पेंट हुआ, उसको पेंट करके उन्होंने असेंबली लाइन पे रख दिया, असेंबली लाइन के अंदर इंजन फिट हुआ, उसके बाद उसके ऊपर ऑयल टैंक फिट हुआ, उसके बाद शॉक्स लगे, करते करते एयर क्लीनर, उसके बाद टेस्टिंग में चला गया, उसके बाद 28 टेस्ट उन्होंने किए, फिर रोलर टेस्ट हुआ, उसके बाद मोटर बाइक मैन्युफैक्चर हो गया, फिर उसको उन्होंने क्रेट में पैक किया और शिपमेंट के लिए भेज दिया. So this is the process flow diagram of manufacturing a motorbike. Flow diagrams show the movement of materials. A process analysis and design. अब process को आप analyze कैसे करते हैं, analyze कैसे करते हैं, process को design कैसे करते हैं, उसके लिए आप techniques use करते हैं. एक flow diagram है, time function mapping है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, प्रोसेस चार्ट्स हैं और सर्विस ब्लूप्रिंटिंग है. ये सारी टेक्निक्स हैं जो आप यूज करते हैं प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इट इज अबाउट द लोकेशन डिसीजन, लोकेशन स्ट्रैटेजी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकेशन स्ट्रैटेजी इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द लोकेशन टू द फर्म. मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द लोकेशन टू द फर्म. जैसे मैंने कहा, मैं अगर एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूं तो आई गो टू बांग्लादेश. बांग्लादेश में पाकिस्तान से भी कम वो है लेबर है, वहां पर टैक्सेस भी कम है. अब लोकेशन, अब मैंने लेट्स सपोज इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में मैंने अगर फैक्ट्री लगानी है तो आई इमीडिएटली लुक फॉर 2-3 थिंग्स. किस चीज़ की फैक्ट्री में लगाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैंने इस्लामाबाद में एक रबर पार्ट्स की एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है. आई लुक के मैं अपनी फैक्ट्री का एरिया कहाँ पे ख़रीदूँ, ज़मीन कहाँ ख़रीदूँ, कहाँ फैक्ट्री लगाऊँ. एक तो वो सिटी से, शहर से थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन के पास होनी चाहिए, सो दैट, या ट्रकिंग एजेंसी के पास होनी चाहिए, सो दैट कि मैं जैसे ही रबर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करूँ वो ट्रक के ऊपर मुझे ज़्यादा दूर ना भेजने पड़े. मुझे पहले यहाँ से लोड करके फिर दूसरी जगह पे दोबारा ऑफ लोड और ट्रेन के ऊपर लोड करने के लिए तो मैं ट्रेन स्टेशन के पास हूँगा तो वहीं से डायरेक्टली मैं ट्रेन पे लोड कर सकूँगा. फिर मैं ऐसी जगह पे प्लॉट लूँगा जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जहाँ पे वाटर गैस अवेलेबल है. उसके बाद वो और बहुत सारी जो हैं जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं या जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री जोन्स भी हैं. तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे प्लॉट मुझे मिलता है वहाँ फैक्ट्री निकालूँ जहाँ टैक्स फ्री जोन हो, सो दैट कि मैं टैक्स का भी बेनिफिट ले सकूँ. सो आप मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं बेनिफिट ऑफ द लोकेशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन अ फर्म मेक्स once committed to a location, many resources and cost issues are difficult to change. एक दफ़ा मैंने फैक्ट्री लगा लिया, अब मुझे वहाँ से चेंज करने के लिए I'll have to meet a huge cost. तो मैं एक दफ़ा लगा ली फिर फैक्ट्री वहाँ से चेंज नहीं करूँगा. Decisions made relatively infrequently और infrequent होते हैं. अगर मैंने फैक्ट्री चेंज भी करनी तो 10 साल 15 साल बाद जाके मैं अपनी लोकेशन चेंज करूँगा. Increasingly global in nature, FedEx a hub in China, Hard Rock Cafe Moscow. अब क्या है कि global in nature कि जिस तरह हमने FedEx की केस स्टडी डिस्कस की थी, FedEx की केस स्टडी में क्या था कि FedEx ने अपना एक चाइना में हब बना लिया, एक हब चाइना में बना लिए, एक उन्होंने अपना जो है FedEx ने अपना हब चाइना में बना लिए और DHL का जो है वो हब है वो इंग्लैंड में, यूके लंदन में. अब DHL में क्या होता है, अब मैंने एक पैकेज सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, मैंने पैकेज सेंड करना है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया मेरे इस तरफ है, इंग्लैंड मेरे इस तरफ है, लेकिन मेरा जो पैकेज है वो पहले इंग्लैंड जाता है फिर ऑस्ट्रेलिया जाता है, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड भेजना आसान और यहाँ वहाँ से इंग्लैंड से फिर उनकी इतनी ज़्यादा शिपमेंट्स फ्लाइट्स जारी होती हैं कि वहाँ से उन्हें कॉस्ट भी कम पड़ती है और वो वहाँ से उनके लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना उस पैकेज को लो कॉस्ट में ज़्यादा आसान है, रादर देन के पाकिस्तान से वो ऑस्ट्रेलिया भेजें. इसी तरह चाइना ने अपना हब इसी तरह FedEx है जो उन्होंने अपना हब जो है चाइना में बनाया हुआ. सो बिकॉज ऑफ द लोकेशन के बेनिफिट की वजह से उन्होंने अपना हब बनाया हुआ. सारी दुनिया से शिपमेंट उनकी चाइना आती है, चाइना से पूरी दुनिया में आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है.
Significant impact on fixed and variable cost may include as much as a 50% of total cost. आपकी जो 50% of the total cost of factory की वो सिर्फ आपकी location की पे ही आपकी spend हो जाती है. The objective is to maximize the benefit of the location to the firm. Location and cost. Location decision supporting a low-cost competitive strategy requires careful consideration. Low-cost competitive strategy क्या होती है कि आपकी ऐसी लोकेशन पे आप फैक्ट्री लगाएं जहाँ पे आप लो कॉस्ट इनकर कर सकें सो दैट अपने कंपैटिटर के साथ compete कर सकें. Because once in place, location related cost are fixed in place and difficult to reduce. और एक दफ़ा आपने वहाँ जिस एरिया में फैक्ट्री लगा ली वहाँ पे जो लोकल आपकी वर्क फोर्स अवेलेबल है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते. Regions with high energy cost, expensive, ill-trained human resource with poor work ethics will make a location decision supporting a low-cost competitive strategy unsuccessful. ऐसी जगह पे जहाँ पे कि आपकी हाई एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा हो, एक्सपेंसिव हो और ह्यूमन रिसोर्स उस जगह की इल ट्रेंड हो, आपकी स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो, तो स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो, ऑल्दो कि लेबर सस्ती हो लेकिन स्किल्ड लेबर अवेलेबल ना हो, तो उसकी वजह से आपकी जो एक्चुअली कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी है लो कॉस्ट की वो अनसक्सेसफुल हो जाती है और आप ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना शुरू कर देते हैं. 7 factors that affects location decisions. Labor productivity, exchange rates, currency risk. Labor productivity की वजह से आप जिस जगह पे ज़्यादा स्किल्ड लेबर है वहाँ पे फैक्ट्री, वहाँ पे क्योंकि आपको लेबर अवेलेबल इजीली होगी. एक्सचेंज रेट जिस कंट्री का कम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, करेंसी रिस्क जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फैक्ट्री आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लगाना चाहेंगे. कॉस्ट जहाँ पे टेंजिबल यूटिलिटीज़, लेबर, मटेरियल, इंटेंजिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन लेवल हाई है वहाँ पे this is one of the factors that you will consider while taking a decision for location. Political risk, values, culture, proximity to market, proximity to supplier, proximity to competitors. क्या आप देखेंगे आप मार्केट से कितना दूर है, अपने सप्लायर से कितना दूर है. जितना आप मार्केट से दूर होंगे, जितना सप्लायर से दूर होंगे, उतनी ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जिन पे बेस करके आप अपना लोकेशन डिसीजन देते हैं. Then the next chapter was about layout design. और layout design का objective क्या होता है? Higher utilization, improved work, improved flow, improved employee, improved customer client flexibility. Higher utilization of space, equipment and people. Higher utilization, हमने इसमें केस स्टडी डिस्कस की थी मैकडॉनल्ड्स की. मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया हुआ है कि मैकडॉनल्ड्स का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे उन्होंने 2-3 तरह के क्लस्टर्स बना दिए. एक उन्होंने क्लस्टर बनाया जिसमें उन्होंने बड़े लग्जरियस सोफेज लगा दिए हैं, बीच में टेबल्स लगा दिए हैं वहाँ पे ताकि यूथ यंग लोग आएँ, बैठें, टाइम स्पेंड करें, गेम खेलें, गप्पे मारें और साथ फूड एंजॉय करें. एक उन्होंने बना दिया, उन्होंने वो सोफ़ा चेयर्स लगा के उन्होंने कर्व्ड उन्होंने कॉर्नर बना दिए जिसके अंदर उन्होंने फैमिलीज़ के लिए एरिया बनाया जहाँ पे फैमिलीज़ आएँ और डिनर करें, लंच करें और साथ प्ले एरिया, बच्चे वहाँ पे खेल सकें और वहाँ पे फैमिलीज़ खाना खा सकें. एक उन्होंने एरिया उन्होंने डिफाइन कर बना दिया जिसमें हाई टेबल्स, हाई चेयर्स के इफ़ सम कस्टमर्स कम्स इनटू मैकडॉनल्ड्स और वो जल्दी में सिर्फ खाना खाने आए, वो उस चेयर पे बैठे अकेला सामने मैच देखे, टीवी लगा हुआ है, टीवी पे मैच देखे और उसके वहाँ खाना खाए और चला जाए. सो डिज़ाइन उन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि उन्होंने 3 तरह के क्लस्टर्स बना दिए हैं, 3 डिफरेंट सोशल सेक्टर्स को कैटर करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए. सो और इसका मतलब है और अपनी स्पेस को उन्होंने हाईली यूटिलाइज किया हुआ है. इम्प्रूव फ्लो के रेस्टोरेंट्स में अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स में हमने हार्ड रॉक कैफ़े की भी हमने एग्जांपल डिस्कस की जिसमें हमने कहा था कि उन्होंने हर टेबल के दरमियान इतना एम्पल स्पेस जगह छोड़ी है सो दैट कस्टमर्स भी इजीली मूव कर सकें और उनके एम्प्लॉयज़ भी. टेबल के ऊपर जो भी कस्टमर बैठा हुआ उसको सर्व करने के लिए भी जगह चाहिए, वहाँ से गुजरने के लिए ट्रॉलीज उन्होंने अपनी ट्रेस लेके गुजरना है एम्प्लॉयज़ ने, वेटर्स ने. तो अगर जगह जितनी कम जगह होगी उतना तंग गुजरेंगे, उतने ज़्यादा एरर के और उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा. जितना फ्लॉलेस होगा, इम्प्रूव्ड फ्लो होगा, उतनी टाइम भी कम कंज्यूम होगा, उतने ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व किया जा सकता है. फिर एम्प्लॉय के मोरल और सेफर वर्किंग कंडीशंस के लिए, फिर इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट और उसके लिए भी आपको इम्प्रूव्ड जो है लेआउट डिज़ाइन इज़ अ बेटर ऑप्शन. और फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपना डिज़ाइन कभी भी चेंज कर सकें.
A good layout requires determining the following: material handling equipment, manual hand trucks, conveyors, cranes, AGVs. अब अगर किसी हम देखते हैं फैक्ट्री का, हम देख लेते हैं कि फैक्ट्री का अगर गुड, हम कहते हैं कि दिस फैक्ट्री हैज अ वेरी गुड लेआउट डिज़ाइन, तो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि जी लेआउट डिज़ाइन अच्छा हो सकता है? एक तो हम कहते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कि देयर इज़ एम्पल स्पेस कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वहाँ पे इजीली मूव कर सकता है, ठीक है, और जगह इतनी है हर मशीन के बीच में कि वहाँ से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इजीली मूव कर सकता है। कैपेसिटी और स्पेस रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स, विंडोज़ हैं, हाई विंडोज़ हैं, वॉल्स ऑफ द ऑफिस टू फैसिलिटेट एयर फ्लो, नॉइज़ रिडक्शन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपन ऑफिस वर्सेस डिवाइडर्स, के वहाँ जितने ऑफिस हैं वो अलग अलग केबिन्स बनाने के बजाय उन्होंने ओपन ऑफिस हैं, डेस्क हैं, बीच में पार्टीशंस हैं, तो वो दे कैन टॉक टू ईच अदर rather than to sit in silos, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मूविंग मटेरियल बिटवीन वर्क एरियाज, और फिर इम्प्रूव फ्लो की वजह से कॉस्ट ऑफ मूविंग मटेरियल भी, और अगर आप लेआउट डिज़ाइन इस तरह से रखें कि जो हर प्रोसेस में स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो स्टेज 1 के से आपका इन्वेंट्री या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो स्टेज 2 में जाना है, तो अगर वो स्टेज 1 और स्टेज 2 आमने सामने होंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ मूविंग मटेरियल भी कम होगा। असेंबली लाइन जो कॉन्सेप्ट जिसमें हम देखते हैं, अगर एक यहाँ पे आपका स्टेज 1 प्रोसेस यहाँ पे, स्टेज 2 प्रोसेस यहाँ पे, तो वो यहाँ से घूम के आएगा तो कॉस्ट ऑफ आपका मूविंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। देन there was another chapter which is job design. इसमें हमारा important जो theme थी, it was the constraints on human resource strategy, क्या क्या है, product strategy है, process strategy है, schedules हैं, location है, individual differences है, layout strategy है। ये सारी चीज़ें क्या define करते हैं? product आपकी strategy define करती है कि product को बनाने के लिए what kind of skills are needed, talent क्या चाहिए, materials कौन से चाहिए, safety requirements। प्रोसेस के लिए प्रोसीजर क्या रिक्वायर्ड है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इक्विपमेंट, सेफ्टी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं कि किस एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, फटीग्स हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिस्पांस टाइम क्या है। फिर लेआउट स्ट्रैटेजी कि कैसे, कहाँ, किस एम्प्लॉय को कैसे प्लेस करना है, फिक्स पोजीशन, प्रोसेस, असेंबली लाइन, वर्क सेल, किस वर्क सेल में, किस स्टेशन के ऊपर किसको पोस्ट करना है प्रोडक्ट। फिर लोकेशन स्ट्रैटेजी में वेयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, नॉइज, लाइट, एयर क्वालिटी, स्केड्यूल्स, टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ ईयर, स्टेबिलिटी ऑफ स्केड्यूल्स, व्हेन। तो ये सारी के सारे मिल के आपके ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, ये सारे फैक्टर्स। और ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके ह्यूमन रिसोर्स के कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो इन सब की मैनेजमेंट जो है वो आप थ्रू जॉब डिज़ाइन करते हैं। स्पेसिफाइंग द टास्क दैट कंस्टिट्यूट अ जॉब फॉर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। अब आप स्पेसिफाई कर देते हैं, जॉब डिज़ाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है, सिक्योरिटी गार्ड को हायर करना है, मैं उसकी जॉब पहले सबसे पहले डिज़ाइन करता हूँ। उसकी मैं जॉब डिज़ाइन क्या करता हूँ कि मैं जॉब उसके नीड एनालिसिस करता हूँ कि मुझे जॉब स्पेशलाइजेशन क्या है, एक्सपेंशन क्या है। वो एक्सपेंशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब वो क्या काम करेगा, बेसिकली क्या स्पेशलाइज काम करेगा कि वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेगा। एक्सपेंशन क्या है कि कोई जब बाहर से आएगा तो गेट भी खोलेगा, गेट बंद भी करेगा, ये उसका जॉब एक्सपेंशन है। उसके फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, सेल्फ डायरेक्टेड टीम, अगर एक टीम है तो उसको ऑटोमेटिकली अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो वो क्या करेंगे, कैसे अपने मैनेज करेंगे खुद ही जब मैं आई एम नॉट अवेलेबल। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव सिस्टम्स उनके क्या होंगे। दिस इज व्हाट अ जॉब डिज़ाइन इज। Then comes the concept very important, job expansion, जिसमें क्या एडेड मोर वैरायटी टू द जॉब। जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी एक्चुअल ड्यूटी तो ये है कि उसने बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो साथ क्या करता है कि जब कोई बाहर से आता तो गेट खोलता भी वो, गेट बंद भी वो करता है। दिस इज जॉब एक्सपेंशन। Intended to reduce boredom associated with labor specialization, job enlargement, job rotation, job enrichment, employee empowerment। उसको आप एम्पावर भी करते हैं, रोटेट करते रहते हैं आप डिपार्टमेंट्स में, फिर एनलार्जमेंट, उसको एक्स्ट्रा काम भी देते रहते हैं उसकी जॉब को अंदर आप, और उसके अंदर उसको अदर डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन एनरिच कर देते हैं। एम्पावर एम्प्लॉय कर देते हैं कि आप वो अपने डेली बेसिस के डिसीजंस खुद ले सकें। एनरिच जॉब प्लानिंग, ये एक हमने देखा था टेबल जिसमें हमने कहा था कि प्लानिंग है पार्टिसिपेट इन अ क्रॉस फंक्शनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम।
अब प्रेजेंट जॉब क्या है, एक एम्प्लॉय है जिसकी प्रेजेंट जॉब ये कि मैनुअली इंसर्ट एंड सोल्डर 6 रजिस्टर्स, उसने क्या करना है कि 6 रजिस्टर डेली के उसने उसके पीसीबी बोर्ड के ऊपर उसने सोल्ड करने, ये उसकी एक्चुअली जॉब है। अब हम उसे क्या कहते हैं, उसकी एनरिच कैसे करते हैं, हम उसे कहते हैं कि एक तो जॉब एनरिचमेंट ऐसे करते हैं कि आप कहते हैं कि जी प्लानिंग पार्टिसिपेट इन अ क्रॉस फंक्शन क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम, कि जो आपने तो सिर्फ पीसीबी बोर्ड के ऊपर रजिस्टर जोड़ने थे, तो जो उसकी रिमोट की बॉडी जो बना रहा है आप उनके साथ भी काम करें, उनको आप मॉनिटर करें और उनको आप उनको मॉनिटर भी करें उनको, और उनको सजेस्ट करें कि वो अपना डिज़ाइन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ जॉब एनरिचमेंट। एनलार्जमेंट क्या है कि आप अपना ये जो काम कर रहे हैं आप इसके साथ साथ आप जो पीसीबी बोर्ड है उसके ऊपर आपने जो स्टिकर लगाना है वो स्टिकर भी, लेबल भी आप लगाएंगे। पहले तो आप सिर्फ रजिस्टर लगा रहे थे, अब लेबल भी आप लगाएं। फिर लॉक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनटू फिक्सचर फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। और एक और आप एनलार्जमेंट क्या करते हैं कि आप कहते हैं एक तो लेबल भी लगाएं और उसके बाद उसको आप क्या करें कि सर्किट बोर्ड को जो है उसके कवर के अंदर आप फिक्स करके आगे भेजेंगे। और कंट्रोल क्या है, टेस्ट सर्किट्स आफ्टर असेंबली, और उसके बाद आप टेस्ट भी खुद ही करेंगे अपने असेंबली, आपने रजिस्टर लगा दिया उसके बाद सर्किट को टेस्ट भी आपने करना। देन कम्स अनदर चैप्टर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन फॉर अ मॉल्ट ड्रिंक। हमने देखा था कि मॉल्ट ड्रिंक एक है, उसकी सप्लाई चेन क्या होगी। सबसे पहले तो फॉर्म है वीट ग्रो करते हैं, वहाँ पे बारले ग्रो करते हैं जिससे, और उसके बाद आप उसको अपने वहाँ से क्रश करते हैं, आप गंदम और बारले को, जौ को आप वहाँ से फसल काटते हैं, फसल काट के बड़े बड़े कंटेनर्स में आप वहाँ रखते हैं और उसको सफाई करते हैं। उसके बाद फिर आप ब्रूअर है जो आपकी फैक्ट्री वहाँ लेके आते हैं। फैक्ट्री के अंदर फिर 2-3 प्रोसेस हैं, एक तो कैन मैन्युफैक्चरिंग है, कैन बन रहा है, बॉटल्स बन रही हैं। फिर उसके बाद आप जब ब्रूअर में लाते हैं तो वहाँ पे आप मॉल्ट ड्रिंक बनाते हैं, मॉल्ट ड्रिंक बना के कैन्स में और बॉटल्स के अंदर आप उसको फिल करते हैं, फिल करके आप डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से फिर लोग कस्टमर परचेज करता है। नाउ व्हाट इज़ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन ये फॉर्म से लेके जहाँ गंदम उग रही है वहाँ उसकी कटाई से लेके आपके कस्टमर तक, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, पूरी की पूरी का सप्लाई चेन है। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी यू हैव अ ब्रूरी, जहाँ पे ब्रूरी है आपकी फैक्ट्री है जहाँ पे क्या मॉल्ट ड्रिंक बनता है। अब मॉल्ट ड्रिंक बनता है तो वो अब उससे पहले का जो आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपने इंटीग्रेशन क्या है कि आपने अपने वेंडर से गंदम और जौ अपने वेंडर से लेनी है, तो वो भी आपने अपने उसको सप्लाई चेन को मैनेज करना है अपने वेंडर को। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, तो वो भी आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है। तो दिस इज अ कंप्लीट सप्लाई चेन फॉर अ मॉल्ट ड्रिंक। Then supply chain strategies, negotiating with many suppliers, long-term partnering with few suppliers, vertical integration, joint ventures, Kiretsu, virtual companies that use suppliers on and as a needed basis. So these are the strategies that we use in supply chain, जो हमने in detail देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर का solely principle या मकसद ये है just to take you just to set the pace for the exam, जिसमें मैंने इसमें जितने चैप्टर्स थे हमारे 7-8 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, बिकॉज एक लेक्चर के अंदर हम उनको इन डिटेल नहीं डिस्कस कर सकते। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कि what that chapter was about and what was the actual theme behind it, what is the concept behind that chapter. And I've moved on. I've taken you through the first 15 lectures, in fact from the second lecture to the 15th lecture, and after this 16th session you will be having your midterm exam. So I wish you best of luck for your midterm exam. Thank you very much.